السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ، لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج منعقد ہوا. آج مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال سمیت دیگر معاملات پر بات چیت کی گئی ہے. خصوصی کے بعد اس حوالے سے میڈیا کو بریف بھی کیا جائے گا. بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی. مسلسل لاک ڈاؤن کا آج 23واں روز ہے. صورتحال تشویشناک ہے. کرفیو کے باوجود کچھ علاقوں میں قابض فوج کے خلاف مزاحمت بھی جاری ہے. وزیر اعظم پاکستان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا، اور جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے کل قوم سے خطاب کیا ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ مسلسل رابطے میں ہیں اور اس مسئلے کو جہاں بھی موقع ملے گا وہ اٹھائیں گے. حکومت ہو، سول سوسائٹی ہو، ایکٹرز ہوں، کرکٹرز ہوں، اسپورٹس مین ہوں، سب مقبوضہ جموں کشمیر میں صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور عامر خان جو ایک مائناز باکسر ہیں وہ بھی اب ایل او سی کا دورہ کر رہے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. بات ہوگی ڈینگی کی. راولپنڈی میں 9 سال کے بعد اگست کے مہینے میں ڈینگی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. 247 تک یہ تعداد جا پہنچی ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو صوبائی وزیر صحت ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے اور کہا ہے کہ جلد اس کو ختم کیا جائے. صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 777ویں سالانہ اس کی 15 روزہ تقریبات کا آج پاک وطن میں آغاز ہو گیا ہے. اور بات ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ کی. بہت سی اپلیکیشنز آئی ہیں. سابق کپتان مصباح الحق بھی اپلیکیشن دے چکے ہیں. کون ہوگا پاکستان کا ہیڈ کوچ؟ کیا ملکی ہوگا یا غیر ملکی؟ ایک اہم سوال ہے، اس پر بات کریں گے. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں، آپ نے جان لی. ان کی تفسیر ہوگی، تجزیہ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نریندر مودی کی حکومت ہے جو کہ ایک ایسے خوفناک نظریے پہ، آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہے جس نے پہلے دنیا میں بڑی تباہی مچائی ہے. پاکستان کی یہ جو کشمیر پالیسی ہے اس کا ایک فیصلہ کن وقت آ گیا. بڑے بڑے فرعون آئے دنیا میں، لیکن جو تکبر ہے وہ اس سے انہوں نے ایسی غلطیاں کی کہ ان کی تباہی ہے. نریندر مودی نے تاریخی بلنڈر کیا، ہسٹوریکل بلنڈر. انہوں نے موقع دے دیا کہ کشمیر کے لوگوں کو اب آزاد ہونے کا. میں کشمیر کا ایمبیسڈر بن گیا، دنیا کے میڈیا پہ اٹھاؤں گا، سب کو بتاؤں گا کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے اور ہمارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے. جو انشاءاللہ باہر پاکستانی ہیں ہمارے، جو کشمیری ہیں، جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ سب اٹھائیں گے. ہم سارے لیگل فورم جو بھی دنیا میں اویلیبل ہیں اس کے اندر اٹھائیں گے. یہ اگر مسئلہ جنگ کی طرف چلا گیا تو یاد رکھیں کہ نیوکلیر ہتھیار ہیں دونوں ملکوں کے پاس. یہ دنیا کے اوپر اس کے اثر جائیں گے. دنیا آئے ہمارے ساتھ یا نہ آئے، پاکستان تو اب ہر حد تک جائے گا، ہر سطح پہ آخری سانس تک ان کے ساتھ جائیں گے. اس کی ذمہ داری آج عالمی کمیونٹی کے اوپر ہے.
ब्रेक के बाद खुश आमद। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ और इसमें आज 10 नकाती एजेंडा था जिस पर बात की गई है। और अब से कुछ देर के बाद मुशीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान मीडिया को आगाह भी करेंगी आज के होने वाले फैसलों से। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं आज जो एजेंडा रहा, आज जो बातचीत रही मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी और दीगर मामलात पर भी डिटेल्स हम जानते हैं शायद अजमल मलिक से, पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी शायद बताइएगा आज जो एजेंडा था, आज मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से भी बात हुई। शुक्रिया शेरदिल। आज चूंकि काबीना इजलास जो है वो था और रूटीन में हम देख रहे हैं कि हफ्ते मंगल के रोज काबीना इजलास हो रहा है, तो आज के इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात की। कल वज़ीर-ए-आज़म ने एक अहम खिताब किया है कौम से और उस खिताब में जो उन्होंने आगे का लाएअमल दिया और उन्होंने बताया कि हर हफ्ते जो है हम इवेंट्स किया करेंगे और उन इवेंट्स के अंदर जो है पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने आएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सफ़ीर बन के इसके ऊपर रोशनी डालूंगा, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बात हुई। और फिर उसके बाद हुकूमत के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, 10 नकाती एजेंडा था जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो प्लान्स हैं, जो मनसूबा साजी है उसके हवाले से भी मंजूरी दी गई मुख्तलिफ मनसूबों की। और जो एक अहम तरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक एक मनसूबा है कामयाब जवान मनसूबा, ताकि पाकिस्तान के जितने भी नौजवान हैं उनको एम्पावर किया जा सके, उनके रोजगार के जराए उनके लिए जो है पैदा किए जा सके। तो उसके ऊपर भी बात हुई क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने इसको सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च भी करना है और कामयाब जवान प्रोग्राम जो है फ्लैगशिप मनसूबा है हुकूमत का, जिस तरीके से हाउसिंग का मनसूबा है, एक जिस तरीके से रोजगार देने का मनसूबा है, उस तरीके से कामयाब नौजवान जो है वो इंक्लूजन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात हुई। तो 10 नकाती एजेंडा जो था उसके ऊपर बात करते हुए मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी दी गई है और कामयाब जवान मनसूबे की पूरी ब्रीफिंग के बाद जो है उसके हवाले से उस पर गौर भी किया गया। बहुत शुक्रिया। शायद अजमल मलिक हमें आगाह कर रहे थे और जो डिटेल्स हमसे कुछ देर के बाद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आज 23वां रोज है लॉकडाउन का, कर्फ्यू का, और 5 अगस्त से लेकर अब तक ना वहां पर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है, ना लोगों को खुराक, ना अद्वियात, ना पानी, ना इंटरनेट सर्विस, ना मोबाइल फोन सर्विस, ना अखबारात, सब कुछ जो है वो बंद किया हुआ है। मकबूजा आबादी में काबिज फौज की एक भारी तादाद में जो नफरी है वो मुख्तलिफ जगहों पर तैनात है और जहां जहां हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है इन भारतीय फौजियों को, वो आगे जा नहीं पा रहे हैं। बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें सोरा का एक इलाका ऐसा है जहां पर उसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कश्मीरी नौजवानों की जानिब से। वो मुसलसल पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं उस इलाके में और उस इलाके में भारतीय फौज को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। बाकी जो कश्मीर है उसमें मुकम्मल तौर पर हम देखते हैं कि लॉकडाउन है और अगर फैसला होता है कर्फ्यू उठाने का, लॉकडाउन को खत्म करने का, तो फिर एक जबरदस्त रद्द अमल के लिए भारत को और मकबूजा आबादी में काबिज भारतीय फौज को तैयार रहना पड़ेगा। इसी पर हम बात करेंगे। मुनीब हक साहब सीनियर सहाफी तजज़ियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मुनीब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज 23वां रोज है, मुसलसल जो वादी से इतलात आ रही हैं वो खुशाइन नहीं है, बहुत अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। क्या समझते हैं आप कि सिर्फ कर्फ्यू उठने की एक दफा देर है, उसके बाद समझ में आएगी भारत को कि क्या हुआ? देखिए शेरदिल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये मोदी सरकार को पता है कि अगर उन्होंने कर्फ्यू उठाया तो मामला तो उनके हाथ से निकल जाएंगे। अच्छा, उनको अभी भी एहसास है कि मामला जो है वो उनके हाथ से निकल गए हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया में हुकूमत इस वक्त किसकी है। मोदी जो है वो ऑफशूट है आरएसएस के। आरएसएस वो जमात है जिसने गांधी को कत्ल किया था। आरएसएस वो जमात है जिसने पाकिस्तान की तकसीम को कभी दिल से कबूल ही नहीं किया था। और मोदी का हीरो गांधी या नेहरू नहीं है, मोदी का हीरो जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जो कि इंतहा पसंद वज़ीर दाखिला था और हिंदुस्तान का पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था। तो एक हिंदुस्तान में मोदी के लबादे में सीधी सीधी आरएसएस है। अच्छा, अब आपने बात की दिल्ली की सूरत हाल की।
देखिए दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, ये 70 लाख लोगों को उन्होंने कन्फाइन किया हुआ है और वो जिंदगी की सारी सहूलतों से अब तो जो खाने पीने की चीजें थी वो भी उनके पास खत्म हो गई, मेडिसिन जो थी वो भी उनकी खत्म हो गई। जिंदगी जो होती है इसके मल्टीपल शेड्स होते हैं, जवान आदमी की रिक्वायरमेंट और होती है, बच्चों की और होती है, खवातीन की और होती है, बूढ़ों की और होती है। मैं समझता हूँ आपने इंट्रो में शायद ठीक कहते थे, अगर आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते थे करबला का, कि मकबूजा कश्मीर इस वक्त करबला का मंजर पेश कर रहा है, तो वो ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि ये सूरत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अल्टीमेटली उनको कर्फ्यू उठाना पड़ेगा। कर्फ्यू उठाने के बाद जो रद्देमल होगा वो फेस करें। जब आप एक गलत कदम उठाते हैं तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे। अब वो मोदी साहब जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मामला उनके हाथ से निकल गए हैं, उनको खुद भी इस बात का एहसास है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो जाए तो जाए कहाँ। अब जो कर्फ्यू अगर उठता है तो बहुत शदीद रद्देमल सामने आएगा और वो शदीद रद्देमल जो है वो उस रद्देमल से डरती है मोदी सरकार। इतनी बड़ी थिक प्रेजेंस के बावजूद फौज की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पुलिस की। और मैं आपको यहाँ बताते चलूं कि पिछले 15 दिनों में को RSS के 50,000 गुंडे भी जो है वो मंगवाए गए हैं और ताकि जो मकामी आबादी है उनको डराया जा सके, उनको खासतौर पर खवातीन के हवाले से खास मैसेज जो है वो देना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये 21वीं सदी है, कि 17वीं सदी के इकदाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। आज सूरत ये है कि हिंदुस्तान एक तरफ है और बाकी जो महजूद दुनिया है वो दूसरी तरफ है। हेलो हेलो मुनीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी बात आ रही है। जी जी। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो हम एक इसको इंटरनेशनलाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब भी था और उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ जो सरबराह ममलिकत है उनसे बातचीत कर रहे हैं, राब्ते में है। अब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करना है। तो मजीद क्या स्टेप्स आप समझते हैं कि इसको हाईलाइट करने के लिए, इसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए करने होंगे? देखिए शेरदिल, 16 अगस्त को जिस वक्त ये मामला सलामती काउंसिल में गया था तो ये मामला इंटरनेशनलाइज हो गया था और सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबरान ने और 10 गैर मुस्तकिल मेंबरान ने बिल्कुल इस बात का, इस अज़्म का अदा किया था कि कश्मीर को दो तरफा मसला नहीं, एक आलमी मसला है। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है कि उसका इतना ह्यूज इन्फ्लुएंस है कि दुनिया की जो पावर्स है वो उसके खिलाफ एक हद से ज्यादा नहीं जाती। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ आपको बताते चलूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया बिल्कुल दुरुस्त है और 27 सितंबर को जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर जनरल असेंबली से खिताब करेंगे तो उस वक्त से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फोर्स ही कर रहा हूं कि मोदी को कर्फ्यू उठाना पड़ेगा 27 सितंबर से पहले, क्योंकि जनरल असेंबली के सेशन के मौके पर मोदी ये कर्फ्यू नहीं रख सकेंगे, क्योंकि सारी दुनिया का जो दबाव होगा वो उन पर होगा और जनरल असेंबली का जो आइंदा सेशन होगा मुझे लगता है वो कश्मीर सेशन होगा और 27 सितंबर को जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो स्पीच करेंगे डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो कश्मीर की, और आप भी कह सकते हैं कि इस वक्त अरूज होगा। आप मुनीर साहब ये कह सकते हैं, आपको लग रहा है कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा में सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। चाहे बेहतर हो कि बाकी ममालिक भी इस मौके पर जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास है कश्मीर के इस मसले को डिस्कस करें। सियासी हल की मैं बात नहीं कर रहा कि सियासी हल क्या होना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए, इल्हाक किसके साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो इंसानियत सोच वाकयात वहां पर हो रहे हैं उस पर तो कोई बोल सकता है। एब्सोल्युटली। देखिए शेरदिल, सबसे पहले तो ये है कि आप वादी से कर्फ्यू उठाएं और नॉर्मलिटी रिस्टोर करें। अब ये आप 25 दिन तक एक वादी को कन्फाइन करके 70 लाख लोगों को कन्फाइन करना कोई हिंदुस्तान का दाखिली मसला नहीं है। इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये ग्रॉस वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, जो हिंदुस्तान आदी हो गया है इस वायलेशन से, इसलिए उसको पता नहीं लग रहा। देखिए आजकल के जमाने में आप किसी को इंटरनेट से महरूम करते हैं, टेलीफोन लाइन से महरूम करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान का दाखिली मसला नहीं है और आप बिल्कुल खाते जमा रखें। हुकूमत का जो स्टार्ट है बिल्कुल ठीक है। मुझे उम्मीद है कि वो इसी सिमत में अगर आगे बढ़ते रहेगी तो 27 सितंबर जब प्राइम मिनिस्टर गेस्ट करेंगे जनरल असेंबली से, उससे पहले मोदी सरकार वहां से काफी उठा चुकी है। अब और जो होता है, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सऊदी वली अहद से राब्ता किया, उस हवाले से जो बड़ी ताकतें हैं उनका रोल आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह कल मोदी की मुलाकात हुई ट्रंप से और उसमें भी ये बात हुई, कश्मीर का मसला डिस्कस हुआ, तो आपको लगता है कि ये तमाम तरह चीजों से एक प्रेशर जो है बिल्ट हो रहा है मोदी के ऊपर?
देखिए प्रेशर बिल्ड हो नहीं रहा है, मुझे लगता है प्रेशर बिल्ड हो गया है, मोदी को बहरहाल पीछे हटना होगा। अब वो चाहते ये हैं कि थोड़ी सी स्पेस लेके पीछे हटें ताकि उनको अंदरूनी मुल्क प्रॉब्लम का हो। अब ये मामला जो है वो कोई सिक्के का नहीं रहा, अब ये मामला एक ग्लोबल मसला। यानी आप कह रहे हैं कि मोदी को फेस सेविंग चाहिए, तो वो क्या हो सकती है? देखिए अपनी तरफ से उनकी कोशिश होगी ना कि वो फेस सेविंग ये ले कि भाई वो बॉडी के अंदर से कुछ ऐसे लोगों को कहें कि जनाब आप आके कोई हुकूमत बना लें या कोई ऐसे इलेक्शन का कोई ढूंढो, लेकिन अब कोई गिमिक नहीं चलेगा उनका, जो गिमिक को पिछले 72 साल से खेलते आए थे। अब बहरहाल कश्मीरियों को उनके हुकूक देने होंगे, उनको उनके साथ बैठना होगा और उनको उनके जो राइट हैं जो उन्होंने स्लैब किए थे उनको देने होंगे। जो बहुत हो गया, 72 साल में जितना इस्तेमाल वो कर सकते थे वो कर लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। मुनीब हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफी तजज़ियाकार, और बात कर रहे थे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। और वो कहते हैं उनके मुताबिक कि भारत और मोदी की हुकूमत पर अब एक दबाव है और अब वो कोई फेस सेविंग चाहते हैं इस मसले को हल करने के लिए। और वो फेस सेविंग क्या हो सकती है वो जानते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जो प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड कर रही है वो जानते हैं कि किस तरह इस मसले को हल किया जाना है। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और आम खबरें उन पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मकबूजा जम्मू कश्मीर की, तो हम देख रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत बल्कि सिविल सोसाइटी, एक्टर्स, प्लेयर्स सब अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि हर हफ्ते आधा घंटा जो है वो एहतजाज के लिए मुख्तस किया जाएगा। इस जुमा को 12 बजे से लेकर 12:30 तक एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा और ये एहतजाज ऐसा होगा कि हर कोई शख्स जो घरों में मौजूद है, दफातर में मौजूद है, वो बाहर निकलेगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। साथ ही साथ इस मसले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। जहां तक सिविल सोसाइटी का ताल्लुक है, उन अफराद का ताल्लुक है जो एक फैन फॉलोइंग रखते हैं, जो दुनिया में पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बॉक्सर जो आमिर खान है वो अब इस कॉज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने फैसला किया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो आएंगे और यहां से अपनी कैंपेन का आगाज करेंगे। और वो लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंचे हैं और उन्होंने दौरा किया है उन इलाकों का जहां पर पाकिस्तान के कश्मीरी भाई बसते हैं। और न सिर्फ वो इस लाइन ऑफ कंट्रोल के पार रहने वाले अफराद के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, बल्कि उस पार रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो कश्मीरी हैं, जिन पर भारत का कब्जा है, उनके साथ भी यकजहती का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने पाक फौज और DGI-SPR से भी खुसूसी इजहार तशक्कुर किया है। और खास तौर पर उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि बरतानिया में है, भारत में है, दीगर इलाकों में जहां जहां वो जाते हैं अपनी फाइट करने के लिए, वहां वो पहचाने जाते हैं। यहाँ पे हम चलेंगे ब्रेकिंग न्यूज के लिए न्यूज स्टूडियोज, उसके बाद वापस आते हैं।